ایک بار پھر آپ کو براہ راست حویلی بہادر شاہ لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد شہباز شریف صاحب، جناب خواجہ محمد آصف صاحب، محترم شاہد خاقان عباسی صاحب، جناب حسن اقبال صاحب، جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب، عابد شیر علی صاحب، محترم چودھری عارف سعید صاحب، جناب راشد لنگڑیال صاحب، معزز وفاقی و صوبائی وزراء صاحبان، معزز ممبران پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی پنجاب، معزز خواتین و حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے، بے حد خوشی کی بات ہے کہ آج 21 مہینوں کے بعد میں یہاں پھر حاضر ہوا ہوں اور آنکھیں دیکھ کر اتنی حیران ہو رہی ہیں کہ 21 ماہ پہلے اس جگہ پر کھیت تھے، میدان تھے، اور آج اتنا بڑا منصوبہ اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہو چکا ہے، یقین نہیں آتا۔ اور آپ بھی بڑے حیران ہوں گے جو اس وقت 21 مہینے پہلے یہاں پہ آئے تھے اور آج آپ پھر دوبارہ یہاں پہ پہنچے ہیں۔ ابھی جب ہم آپریشن روم میں تھے تو وہ 21 مہینوں میں نہیں بنتا۔ اس بلڈنگ کا، اس کارخانے کا ایک سیکشن، ایک یعنی 10واں حصہ جو ہے وہ 21 مہینوں میں تیار نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ اتنا بڑا پلانٹ اللہ کے فضل و کرم سے آج تیار ہو چکا ہے۔ اور یہ بڑا، میں خود حیران ہوتا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایک نئی روایت قائم ہو رہی ہے۔ یہ روایت نہ ہم نے پہلے کبھی دیکھی نہ سنی، اور آج ماشاءاللہ 21 مہینوں میں اتنے بڑے منصوبے آج بن رہے ہیں۔ اور پاور سیکٹر میں آج میں نے جیسے کہ پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ ہر آنے والے مہینے میں کوئی نہ کوئی منصوبہ جو ہے وہ آج تیار ہو رہا ہے افتتاح کے لیے۔ درجنوں منصوبے اس وقت بن رہے ہیں، اور بجلی کی جو پیداوار ہے، جب ہم نے حکومت سنبھالی اس وقت سے لے کے آج تک تقریباً 7,000 میگا واٹ بڑھ چکی ہے، 7,000۔ اس وقت 12,000 تھی، کیوں خواجہ صاحب؟ اس وقت 12 یا 13,000 تھی اور آج 19,000 ہے۔ اتنا فرق پڑا ہے، اور آج کا منصوبہ انشاءاللہ اور آنے والے منصوبے اس میں اور اضافہ کریں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں روشنیاں واپس لوٹ رہی ہیں۔ اندھیرے چھا چکے تھے اس ملک کے اندر، واقعتاً اندھیرے چھا چکے تھے، فیکٹریاں بند ہو رہی تھیں، کاشتکار کے ٹیوب ویل نہیں چلتے تھے، ملک کے اندر گھروں میں اندھیرا تھا۔ آج جب یہ پلانٹ چل رہے ہیں تو اللہ کے فضل سے گھروں میں بجلی جا رہی ہے، ان گھروں میں بھی بجلی جا رہی جہاں بجلی کا وجود نہیں تھا، نئی نئی بستیوں میں بجلی جا رہی ہے، کسانوں کے ٹیوب ویل چل رہے ہیں، انڈسٹری چل رہی ہے، خوشحالی آ رہی ہے ملک میں۔ آج میں حیران ہو رہا تھا 1-2 دن پہلے سن کر کہ ملک کے اندر جو ٹورزم ہے، مقامی ٹورزم،
टूरिस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि पहाड़ों में जगह नहीं मिलती ठहरने को। और आज मुझे शायद खकान अब्बासी बता रहे थे कि 40 हजार रुपए का एक कमरा मिलता है कागान में, नारान में। और बाकी जगहों पे मुझे वजीर आजम आजाद कश्मीर बता रहे थे, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान बता रहे थे कि हमने टेंट्स बनाए हैं मैदानों के अंदर, क्योंकि ना होटलों में जगह है, ना मोटल्स में जगह है, ना रेस्ट हाउसेज में जगह है। और लोगों की कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की जो जा रहे हैं इन इलाकों में टूरिज्म के लिए। फैमिलीज जा रही हैं, खानदान के खानदान जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर अल्लाह के फजलो करम से खुशहाली आ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है लोगों की आमदनी बढ़ रही है, लोगों के पास वसाइल हैं कि वो खर्च कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये ऐसा हो रहा, देखने और सुनने में ये बात आ रही है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि इंडस्ट्री बढ़ी है। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 5.3% हुआ है, जो पिछले 10-12 सालों में फिर आके 5.3%, जब मैं पिछली दफा वजीर आजम था तो 7% तक हमारा ग्रोथ रेट पहुंचा था। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि अगले 1-2 सालों में हम 7% से भी आगे निकल जाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में तरक्की हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में तरक्की हो रही है, अल्लाह ताला का फजलो करम है। और इस तरह के मंसूबे इंशाअल्लाह लोगों को और उम्मीदें बढ़ा रहे हैं कि इंशाअल्लाह लगाओ कारखाने, बिजली आ रही। और हमने सोच समझ के ये फैसला किया था इन कारखानों को लगाने का। आते साथ ही शहबाज शरीफ साहब भी उन मीटिंगों को बहुत अटेंड कर चुके हैं जो हमने कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी हमने जो है उसका क़याम किया। और ये मामला सिर्फ कैबिनेट तक महदूद नहीं रखा, ये सिर्फ मामला जो है ये छोटी छोटी मीटिंगों तक महदूद नहीं रखा। हमने इस पर कैबिनेट कमेटी एक बनाई जिसमें जो है वो हर हफ्ते में 1 या 2 मरतबा उसकी मीटिंग होती थी। और वहां इस पर बहुत जोर शोर के साथ बहस होती थी, क्योंकि मेरा वादा था कौम के साथ, हमारा कौम के साथ वादा था, मुस्लिम लीग नून का कौम के साथ वादा था कि हम पाकिस्तान के अंधेरे दूर करेंगे। वादा था कि हम बिजली को वापस लेकर आएंगे। और हमने अल्लाह के फजलो करम से ये वादा बहुत हद तक आज पूरा कर दिया है। जो रही सही कसर है वो इंशाअल्लाह अगले चंद माह में इंशाअल्लाह पूरी कर देंगे। और फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज वाकईतन हम लोड शेडिंग को देश निकाला दे रहे हैं। लोड शेडिंग को हमेशा के लिए अब खत्म करने जा रहे हैं। और लोड शेडिंग के जिम्मेदारों को आपको पूछना चाहिए, भाई आपने पाकिस्तान के अंदर ये लोड शेडिंग शुरू क्यों की? पाकिस्तान में अंधेरे क्यों पैदा किए आपने? और ये आप 10-15 साल की नालायकी की वजह है, ये मुजरिमाना गफलत की वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात पैदा हुए। नहीं होने चाहिए थे। इस कौम के साथ इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज्यादती कि आप रोशनियां छीन लें, आप अंधेरों में डुबो दें इस कौम को। खुदा का खौफ करना चाहिए। और ये आज हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, इस कौम की खिदमत कर रहे हैं। यही तो भाई हमारे मुखालिफिन को जो है यही तो उनको तकलीफ है। उनको यही तकलीफ है कि पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों को छूने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो अंधेरे खत्म हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सड़क और मोटरवेज बन रहे हैं। जगह जगह माशाल्लाह मोटरवेज पे काम जारी है। जगह जगह हाईवेज बन रही हैं। किसी जगह पे 4 लेन है, किसी जगह पे 6 लेन है। और माशाल्लाह यहां से अब पेशावर कराची से मिलने जा रहा है मोटरवे के जरिए से। गवादर जो है वो खुंजराब से मिल रहा है एक्सप्रेस हाईवे के जरिए से।
اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہاں اس علاقے کے اندر بھی جو ہے وہ فیصل آباد سے لے کے تو ملتان تک اب یہ 4 لین سڑک یہاں پہ جا رہی ہے، اور تھوڑے فاصلے پہ 6 لین موٹر وے لاہور سے ملتان جا رہی ہے، آگے ملتان سے سکر جا رہی ہے، بننی شروع ہو چکی ہے، سکر سے حیدرآباد انشاءاللہ وہ بھی عنقریب بننی شروع ہو جائے گی، اور حیدرآباد کراچی تو 14 اگست کو انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ تھرو آؤٹ 6 لین ہے، 6 لین۔ یہ ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے، انقلاب، کوئی سمجھے تو جانے، انقلاب برپا ہو رہا ہے، اور یہ بھی کسی انقلاب سے کم نہیں ہے۔ جو بھی بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، جو منصوبہ دیکھ رہے ہیں، یہ کسی انقلاب سے کم نہیں ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کو دل کی گہرائیوں سے شاباش دینے کو دل چاہتا ہے، آپ کے ساتھ مل کر، کہ ماشاءاللہ دن رات کام کرتے ہیں، اور ان منصوبوں کو مکمل کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خواجہ آصف صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، جنہوں نے ساتھ مل کر شانہ بشانہ ان منصوبوں کو مکمل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور یہ منصوبے مکمل ہو رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا بڑا شکریہ کہ بر وقت آپ نے گیس پہنچائی یہاں پر، بہت بڑی بات ہے بھائی۔ یہ منصوبہ صرف یہ منصوبہ نہیں ہے جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس منصوبے میں بہت اور سارے منصوبے بھی شامل ہیں۔ کراچی میں ٹرمینل شامل ہے، جو کراچی پورٹ پہ بنایا گیا ہے، جہاں پہ LNG آتی ہے، اور وہ گیس آتی ہے، اور پھر اس گیس کو یہاں تک پہنچایا جاتا ہے پائپ کے ذریعے سے۔ یہ کوئی چھوٹے منصوبے نہیں ہیں۔ اور پھر ابھی پچھلے دنوں جب ہم نے سائی وال پاور پلانٹ کا افتتاح کیا تھا، جو 1320 میگا واٹ کا ہے، وہاں وہ کوئلے سے پلانٹ چلتا ہے۔ بھائی کوئلہ غیر ملکی کوئلہ ہے، وہ جو پہلے کراچی آیا، پھر کراچی سے ٹرین میں سائی وال آیا، اور سائی وال ٹرینیں اس منصوبے کے اندر آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ منصوبہ کو کول فراہم کرتی ہے، کوئلہ فراہم کرتی ہے، اور منصوبہ چلتا ہے، اور 1320 میگا واٹ وہ بجلی پروڈیوس کرتا ہے۔ اتنے بڑے منصوبے وہ بھی 2 سالوں کے اندر مکمل کیا ہے۔ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے بھائی۔ اور ابھی آپ کو شہباز شریف صاحب نے بتایا، بھکی کا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے افتتاح کر چکے ہیں۔ بھکی کے بعد انشاءاللہ یہ حویلی بہادر شاہ ہے، اب بلوکی کی باری ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر کراچی میں پورٹ قاسم کی باری ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ انبلیویبل ہے۔ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں خود یقین نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے اتنی بڑی خدمت لی ہے اس قوم کے لیے۔ اور یہ بنیادی ایک کسی ملک کی معیشت کے لیے بجلی کا کردار بنیادی کردار ہوتا ہے۔ بجلی کے بغیر کچھ نہیں آج کل کے دور میں۔ اور وہ کیا حکومت ہے جو اپنے ملک کو، اپنی قوم کو بجلی سے محروم کر دیتی ہے؟ یہ تو بہت افسوسناک بات ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا جتنا کڑا حساب لیا جائے اتنا کم ہے، جس میں وہ ڈکٹیٹر بھی شامل تھا جو آج کل ملک سے باہر ہے، وہ لوگ بھی شامل ہیں جو روز آج سیاست میں نت نئی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی بیچ میں شامل ہیں، جنہوں نے خود اس ملک کے اندر اندھیرے پیدا کیے۔ آج وہ بھی کہتے ہیں جی کہ جو یہ بجلی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کس طرح سے لے کے آئیں گے؟ بھائی آ رہی ہے بجلی، اور پھر یہاں پر یہ ترقی کے مخالف لوگ یہاں پہ، تو ان کا تو میں سمجھتا ہوں کوئی کمی نہیں ہے۔ خاص طور پہ میں ان بعض سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ صرف یہ ترقی نہیں ہو رہی، بجلی سستی بھی آ رہی ہے۔ یہ جو منصوبہ ہے یہ 6 روپے 42 پیسے فی یونٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، 6 روپے 42 پیسے۔ لنگڑیال صاحب، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ لنگڑیال صاحب کو بھی بہت بہت شاباش، بہت عمدہ کام کیا انہوں نے۔ یہ ہیں جو
पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन सिविल सर्वेंट्स जो वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ, खुलूस के साथ काम कर रहे हैं और मुल्क की तामीर कर रहे हैं, और फिर इन्होंने ये मंसूबे लगाए हैं और आज 168 बिलियन रुपया, 168 अरब रुपया जो है वो इन दो मंसूबों में बचाया है। यहां पर ये ऑपोजिशन वाले हमारे एहतसाब की बात करते हैं। भाई ये जो पैसा बचाया है, 168 की जो बचत हुई है 168 अरब रुपए की, भाई उसकी कम से कम और तो कोई शाबाशी दे छोड़ो, कोई ये बहुत बड़ी बचत है। और इस 168 अरब रुपए की बचत से हम और कई मंसूबे लगा सकते हैं। और फिर बिजली की जो मैंने बात की थी, सिर्फ बिजली वापस नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर, बिजली सस्ती भी आ रही है। आइंदा आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह सस्ती बिजली का वक्त है। हमारे ऐसे कई मंसूबे थे जो 24 रुपए का यूनिट बना रहे थे, आज भी हैं जो फर्नेस ऑयल पर चलते हैं, लेकिन ये मंसूबा 24 रुपए का नहीं, 6.5 रुपए बिजली का यूनिट बना रहे हैं। कितना फर्क है। बिजली सस्ती होगी, किसान को फायदा होगा, बिजली सस्ती होगी, काश्तकार को फायदा होगा, बिजली सस्ती होगी, इंडस्ट्री को फायदा होगा, हमारी एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा। बिजली सस्ती होगी, लोगों को बिजली के बिल कम अदा करने पड़ेंगे, और बिजली सस्ती होगी तो मुल्क के वारे न्यारे होंगे। ये पाकिस्तान को चलाना जो है भाई कमिटमेंट के साथ इसको चलाया जा सकता है, और हमने अल्लाह के फजल करम से अपने इस 4 साल दौर में कोई कसर नहीं छोड़ी। और एक खुशी की खबर आपको ये है कि इंशाअल्लाह 10 जुलाई यानी जो 3 दिन के बाद, जिस दिन JIT को तो आप जानते हैं, JIT को जानते हैं या नहीं जानते? जो वो कर रही है वो भी आप जानते हैं या नहीं जानते? 10 जुलाई को उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट JIT दे। उसी 10 जुलाई को इंशाअल्लाह दासू पावर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। ये इंडस रिवर पर दासू का मकाम है, जो इस्लामाबाद से खुंजराब जो चाइना बॉर्डर पर जो सड़क जाती है उसके रास्ते में है। और ये इतना बड़ा मंसूबा है अल्लाह के फजलो करम से कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। 4500 मेगावाट बिजली इंशाअल्लाह जनरेट करेगा। 4500, ना मंगला करता है 4500, ना तरबेला करता है 4500, ना कोई और मंसूबा 4500 करता है। ये 4500 मेगावाट देगा, और ये बहुत बड़ा मंसूबा है जिसकी संगे बुनियाद जिसकी तामीर जो है 10 जुलाई 3 दिन के बाद इंशाअल्लाह उसकी शुरू होगी। ये हैं वो मंसूबे भाई, ये हैं वो मंसूबे। और फिर उसके बाद भाषा डैम भी जो है वो अब तकरीबन तैयारी के आखिरी मराहिल में। भाषा डैम जो इतना ही 4500 मेगावाट बिजली वो भी जनरेट करेगा, और वो बहुत बड़ी एक अपना वाटर रिजर्वॉयर भी है, वो बहुत बड़ा डैम भी है जो न सिर्फ बिजली प्रोड्यूस करेगा बल्कि वो इरिगेशन के लिए पानी भी मुहैया करेगा, एग्रीकल्चर के लिए काश्तकारों को पानी मुहैया करेगा। और वो सबसे बड़ा डैम है, वो मंगला से भी बड़ा डैम है और वो तरबेला से भी बड़ा डैम है। हमारी नजर अल्लाह के फजलो करम से हर सतह पर, हर जगह पर है, हर सेक्टर में है। आज पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है,
लेकिन ये पिछले जो दिन गुजरे हैं, जो गुजर रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक अनसर्टेनिटी की वेव पैदा की है, जिसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट भी जो है वो कमजोर हुई है। और आपको मालूम है कि पिछले चंद दिनों में कितनी नीचे आई है स्टॉक मार्केट, कितनी तेजी से ऊपर जा रही थी, लेकिन जब से ये इंस्टेबिलिटी और जब से ये अनसर्टेनिटी के दिन शुरू हुए हैं, उससे कितनी बुरी तरह से ये इफेक्ट हुई है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि एक दो दिन पहले रुपए की कीमत जो है उसमें भी फर्क आया है, लेकिन हम अल्लाह के फजल व करम से हमारा आज़म मजबूत है। और मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जिन लोगों ने हमें रोकने के लिए आसमान सर पर उठा रखा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप 1000 मर्तबा भी आसमान सर पर उठाएंगे, हमें इंशाअल्लाह इस खिदमत से कोई नहीं रोक सकता। हम इंशाअल्लाह अपना ये काम, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे। आपका काम है, या आपको यही काम मिला है, आप उसको करते रहें बेशक। और आप जो कुछ पिछले 4 सालों से आप कर रहे हैं, ये कौम जानती है। मुस्लिम लीग नून से आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार शिकस्त खाई है। आइंदा भी इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून आपको शिकस्त देगी। और आप समझते हैं कि आप इंशाअल्लाह इलेक्शन के मैदान में अल्लाह के फजल व करम से इलेक्शन जीत नहीं सकते, बस सिर्फ अब आप साजिश करते हैं, आप साजिश करते हैं। इलेक्शन जीतने की आप में सकत नहीं है। और कभी आप धांधली की आड़ में आप साजिश करते हैं, कभी आप अपना ये जो आपने अपना धरने हैं उसकी आड़ में साजिश करते हैं, एहतसाब की आड़ में आप साजिश करते हैं, और कभी जेआईटी के पीछे छुपते हैं। भाई इस तरह के आप समझते हैं कि जी आप चूंकि इलेक्शन नहीं जीत सकते, कोई ना कोई आप साजिश के जरिए आप जो है ना वो अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। ये तो बुज़दिली है, बुज़दिली, परले दर्जे की बुज़दिली है। आप अपना जो है इन चीजों के पीछे छुपने की बजाय, आड़ लेने की बजाय, आप मैदान में आओ, मैदान में आके मुकाबला करो। आओ मैदान में, जब कहोगे हम मैदान में आने को तैयार हैं आपके मुकाबले में। और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के अवाम जानते हैं, हमें भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं, आपके किरदार को भी जानते हैं, आपके काम को भी जानते हैं। और वो जानते हैं कि हमारा भी माशाअल्लाह एक मस्बत किरदार पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में है। हमारे तो और बड़े बड़े मंसूबे हैं भाई। अभी देखें देहातों में क्या हो रहा है, खेतों से मंडियां तक सड़कें बन रही हैं, देहातों में स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, एजुकेशन आ रही है, हेल्थ केयर आ रही है। और देहातों के अंदर एग्रीकल्चर के लिए माशाअल्लाह बेशुमार पॉलिसीज हैं हमारी। हम वो लोग हैं जिन्होंने फर्टिलाइजर को सस्ता किया, खाद को सस्ता किया, आइंदा और भी करेंगे इंशाअल्लाह। किसानों की इससे भी ज्यादा खिदमत करेंगे, उनको बिजली भी सस्ती देंगे, गैस भी सस्ती मिलेगी। इंडस्ट्री की माशाअल्लाह हम खिदमत कर रहे हैं और अपनी मसनूआत को और सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक्सपोर्ट में जो है वो दूसरों का मुकाबला कर सकें। हम ये काम अपना जारी रखेंगे। जाके कोई बलूचिस्तान में देखे कि कितनी तरक्की का एक अमल शुरू है अल्लाह के फजल करम से। केपीके में मोटरवे हम बना रहे हैं, इंशाअल्लाह इसी साल उसका इफ्तिताह होने वाला है। हजारों मोटरवे हम बना रहे हैं, केपीके को हम तामीर कर रहे हैं, केपीके के अंदर लवारी टनल को हम बना रहे हैं। 26 अरब रुपया हमने दिया है पिछले 2 सालों में ताकि लवारी टनल जो कि पिछले 50 सालों से ज़ेरे तामीर है उसको मुकम्मल किया जा सके। आज वो मुकम्मल हो रही है।
इंशाल्लाह अगले 2 महीनों में इसका इफ्तिताह हो रहा है। ये कोई मामूली बातें नहीं है। इतने से बड़े डैम बन रहे हैं, दासू बन रहा है, द्यामर भाषा बन रहा है, और फिर सिंध के अंदर जो है वो थर के अंदर पाकिस्तानी कोयले के इस्तेमाल, कोयले से हम मंसूबे बना रहे हैं जो पाकिस्तानी कोयला है। और ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये मंसूबे सिंध के अंदर मुकामी कोयले से बन रहे हैं। ये छोटी चीजें नहीं है। आपके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कम्युनिकेशन बन रहा है आपका। बिजली के साथ साथ मैंने पहले अर्ज किया है, सड़कें, मोटरवेज और हाईवेज बन रही हैं। इतनी बड़ी तादाद में कभी आज तक ना सड़कें इस मुल्क में बनी है, ना हाईवेज बनी है, ना मोटरवेज बनी है। शहरों में कहीं मेट्रो बस आ रही है अल्लाह के फजलो करम से, कहीं आपकी ऑरेंज लाइन आ रही है। शहरों में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर हो रहा है। एक जमाना था, मैं शहरों में, लाहौर जैसे शहर में भी मैं देखता था कि छोटे छोटे बसें, वैगने, नौजवान छोटे छोटे लड़के स्कूलों में जाते हुए कॉलेज जाने के लिए उसके पीछे जंगले से लटक रहे हैं, पकड़ के लटक रहे हैं। खुदा न खासा जंगला जरा कमजोर हो तो कितनी मुसीबत आ सकती है अगर वो गिर जाए तो। आज शाद और नादर ये चीज नजर कहीं आती है। आज अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ साहब को भी बहुत बहुत शाबाश देने को इस बात पे भी दिल चाहता है कि इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं। और यहां पे कोई जंगला बस कहता है उसको, कोई उसको अपना, और क्या कहते हैं उसको, हाँ, जंगले बस के साथ साथ क्या कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उन गरीबों से पूछो, छोटी छोटी बच्चियों से, बच्चों से, मजदूरों से पूछे कोई जाकर कि वो पहले किस तरह से सफर करते थे अपने घर से अपने स्कूल तक, अपने काम की जगह तक, अपने दफ्तर तक, अपनी मजदूरी के लिए कैसे जाते थे वो एक बस से दूसरी बस में, उसके बाद किसी जगह पे रिक्शा पे बैठते थे और पता नहीं कितने रुपए रोज खर्च करते थे, सैकड़ों रुपए रोज खर्च करते थे सिर्फ आने जाने में। आज 25-25 रुपए में, 20-20 रुपए में वो अपना सफर मुकम्मल करते हैं। ये लोग उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। कभी पूछो उनके जाकर उनके घर में जाकर खबर लो कि वो किस हाल में जिंदगी बसर करते हैं। और ये मेट्रो बस के बाद कितनी उनमें अल्लाह के फजलो करम से इनके घरों में खुशी की लहर दौड़ी है। आज ये लाहौर से ऑरेंज लाइन शुरू हुई है, ये इंशाल्लाह पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। हम अपनी ट्रेनों को जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं, अपने रेलवे सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। 8 अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं उस पर, यानी 800 अरब रुपया। हमारी ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है इंशाल्लाह। जहां हमारी स्पीड 80 किलोमीटर थी, 120 किलोमीटर पे उसको लेके जा रहे हैं। ये छोटे मंसूबे नहीं है, ये पाकिस्तान तब्दील हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है पाकिस्तान। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों के सफ के अंदर इंशाल्लाह 1 नंबर पे होगा अल्लाह के फजलो करम से। बहरहाल आज का जो फंक्शन है थोड़ा लेट शुरू हुआ, कुछ तकरीरें भी ज्यादा थी और वक्त भी ज्यादा लग गया। लिया मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब जो काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं एक भरपूर शाबाश आप उनको दें। और ये मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ साहब पंजाब स्पीड पे काम कर रहे हैं और पंजाब स्पीड माशाल्लाह चाइना तक पहुंच चुकी है कि चाइना भी पंजाब स्पीड को जो है वो उसका इतराफ कर रहा है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म का ये कहना था, वज़ीर आज़म का 10 जुलाई को दासू पावर प्लांट का संगे बुनियाद रखने का भी ऐलान। इस तकरीब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जीत नहीं सकते, इसलिए धरने और धांधली की साजिश करते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हवेली बहादुर शाह में मौजूद हैं। तकरीब से उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि आओ मैदान में मुकाबला करो।